شاید آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہیں یا مانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل ایشیا کا جیمز ٹاؤن ہے، بالکل ایسے جیسے برطانویوں نے امریکہ کی دریافت کے بعد اس کے مشرقی ساحل پر اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیاں قائم کر لی تھیں۔ جیمز ٹاؤن بھی انہی میں سے ایک تھا۔ شروع میں وہ انہیں صرف ایک قلعے کے طور پر اپنے اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن دراصل ان کا مقصد اسے آگے تک پھیلانا تھا اور پورے امریکہ میں نیٹو امریکنز کی مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضہ کرنا تھا، ایک قوی قاصد قوم بننا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے نیٹو امریکنز کی اسنک کلینسن کی، یعنی انہیں ان کے ہزاروں سال پرانے گھروں سے نکال دیا، ان کا کلچر، رہن سہن، یادگاریں، سب کچھ مٹا دیا۔ پھر کامیابی کے ساتھ ان کی اور جینوسائیڈ بھی کی، یعنی لاکھوں نیٹو امریکنز کو ہلاک کر دیا گیا، ہتھیاروں سے، بیماریوں سے اور آپس میں لڑائی کر کے انہیں ختم کر دیا۔ اس کامیاب اسنک کلینسن اور نسل کشی کے نتیجے میں امریکہ نے دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملٹری ایمپائر قائم کی۔ یہی وہ کامیاب تجربہ ہے جو اب اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطی میں چھوٹے پیمانے پر دہرایا جا رہا ہے۔ جب امریکی صدور اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی اقدار مشترک ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تو دراصل امریکہ اپنے اسی کامیاب کالونیل پروجیکٹ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو نیٹو امریکنز کی زمینوں پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی طرح امریکہ کے کامیاب کالونیل پروجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ شاید آپ اور بہت سے دیگر دوست ہمارے اس تجزیے کے اس زاویے سے آشنا ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو امریکی کیمرہ مین کی بنائی ہوئی تصاویر، ان کی پینٹنگز اور کتابوں سے ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں، جس سے آپ کسی حد تک سمجھ جائیں گے کہ امریکہ کس طرح اپنے کامیاب کالونیل پروجیکٹ کو اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیرس فیلوز 1828 میں جب اینڈریو جیکسن امریکہ کے 7ویں صدر بنے تو انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا۔ انہوں نے امریکہ سے مقامی قبائل کو، جنہیں نیٹو یا انڈین کہا جاتا تھا، ان کی نسل کشی کو قانونی حیثیت دے دی، کیونکہ انہوں نے الیکشن اسی نعرے پر جیتا تھا کہ وہ انڈین پرابلم، یعنی سفید فارم سیٹلرز کے راستے میں آنے والے نیٹو امریکن قبائل کو ہر صورت میں ہٹا دیں گے اور انہیں امریکہ میں کالونیوں کو پھیلانے میں مدد دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انڈین ریموول ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کرایا اور نیٹو امریکنز کی نسل کشی کا آغاز کر دیا۔ اس قانون کے مطابق تمام مقامی آبادیاں نیٹو امریکی قبائل کی بندوق کے زور پر ان کے گھروں سے نکال دی گئیں۔ انہیں جبرانہ اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں ان کے قبائل اور بستیوں سے تقریباً 1600 کلومیٹر دور، تقریباً 1000 میل دور ایک علاقے میں قیدیوں کی طرح جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ساری راہ بہت تکلیف دہ تھی اور اسے تاریخی طور پر ٹریل آف ٹیئرز، یعنی آنسوؤں کا راستہ کہا جاتا ہے۔ انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ جبرانہ بے دخل کیے جانے والے ان تمام قبائل کو اس نئی سرزمین پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں وہ اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، اور اسے آزادی کا نام دیا گیا۔ اس کا باقاعدہ نام فریڈم آف نیٹوز، یعنی نیٹو امریکیوں کی آزادی رکھا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ کئی سالوں تک چلنے والی اس نسل کشی کے نتیجے میں نیٹو امریکن قبائل کو آخرکار اس جگہ دھکیل دیا گیا جہاں آج ریاست اوکلاہوما ہے، لیکن اس وقت اس پورے علاقے کو انڈین ٹیریٹری کا نام دے کر ایک نیم خود مختار ریاست کی شکل دے دی گئی تھی، جہاں سے ان قبائل کو نکال کر ان کی زمینیں، ان کے تاریخی مقام، ان کی آبادیاں اور صدیوں کی یادگاریں مٹا دی گئیں اور وہاں سفید فارم سیٹلمنٹ قائم کر دی گئی۔ یہ نیٹو امریکی جو سمجھوتا کر کے یہاں آئے تھے کہ کم از کم باقی بچ جانے والے تو محفوظ ہوں گے، وہ بھی یہاں محفوظ نہ رہ سکے۔ نیٹو امریکنز دراصل بھول گئے تھے کہ کالونیل طاقتیں انہیں انسان کے طور پر نہیں سمجھتی تھیں، وہ انہیں ڈی ہیومنائز کر چکی تھیں۔ اسی بارے میں امریکی صدر اینڈریو جیکسن بھی کہتے تھے کہ یہ تو جنگلی ہیں، قبائلی اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں ترقی کرنے کی کوئی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ اب امریکی فاؤنڈرز کے ذہنیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی ذہنیت نے جو نیٹو امریکیوں کو انسانیت سے خارج، ڈی ہیومنائز کرنے کا عمل شروع کیا تھا، وہ اپنے تمام وعدوں سے ایک کے بعد ایک پھرتا گیا۔ کیا ہوا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مقامی قبائل سے ان کی انڈین ٹیریٹری یعنی اوکلاہوما کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس لیا جانے لگا۔ کبھی کاغذی قوانین کے ذریعے ان کی زمین چھین لی گئی، کبھی دھمکیاں دے کر، اور کبھی سیٹلرز کے ذریعے مقامی آبادکاروں کو مار کر ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا۔ جب نیٹو قبائل جو تعداد میں کم تھے جواب دیتے تو انہیں دہشت گرد دیگر الزامات لگا کر ختم کر دیا جاتا،
और जो बचते उन्हें सिक्योरिटी के नाम पर, दिफा के नाम पर कहीं दूर मुंतकिल कर दिया जाता। सफ़ेद फार्म आबादकार इस नस्ल कशी और इंसानियत से बेगाना करने, डिह्यूमनाइजेशन, को एक मुक़द्दस मिशन समझ कर रहे थे। वो समझते थे कि खुदा का हुक्म है, खुदा की मर्जी है कि जंगलों में बसने वाले लोगों से ये कीमती ज़मीन लेकर बाइबल के मानने वालों के इख्तियार में दी जाए। इसलिए सेटलर्स ये समझ कर करते थे कि जो नेटिव अमरीकी उनकी नसीहत कबूल कर लेते, उन्हें कुछ राहत दे देते, लेकिन आखिरकार उनसे भी ज़मीन छीन लेते। इस दौर को दिखाने के लिए एक मशहूर पोस्टर भी था, जिसमें एक सफ़ेद फार्म खातून सेटलर जो आसमान से फरिश्ता की तरह आ रही है, ज़मीन पर चल रही है। इसके साथ सफ़ेद आबादकार भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथ बहरी जहाज, रेल के ट्रैक और जदीद ज़री निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने जो नेटिव अमरीकी हैं वो जंगलों की तरह भागते जा रहे हैं, और नेटिव अमरीकियों के साथ वो मकामी जानवर भी भाग रहे हैं। कर्नस फेलोज नेटिव अमरीकियों से मकामी अमरीकियों से उनकी ज़मीन बार बार छीनने का सिलसिला 1880 तक जारी रहा, क्योंकि हज़ारों मील दूर यूरोप से सफ़ेद फार्मों को यहाँ बसाने का अमल भी जारी था। लेकिन असल मसला बसने का नहीं था, ज़मीन तो बहुत थी, असल मसला ये था कि उन्हें ऐसी जगहों पर बसाना था जहां नेटिव अमरीकी अब रहने लगे थे, और वो ज़मीन बहुत कीमती हो चुकी थी। वहां से मदनिया मैनरलिज निकालने का अमल जारी था। वो ज़मीनें ज़रखेज़ थीं और बहुत सारी जगहों से सोना भी निकल रहा था, यानी जहां भी दौलत कमाई जा सकती थी वहां नेटिव अमरीकी रहते थे, और अमरीकी सेटलर्स के नज़दीक नेटिव का वहां होना इस ज़मीन को ज़ाय करने के मुतरादिफ था। इसलिए वो उन पर कब्जा कर लेते थे और इसे अपना हक समझते थे। वो कहते थे कि नेटिव के लिए तो ये ज़मीन किसी काम की नहीं है, ये नॉन प्रोडक्टिव सेटलमेंट है, इसलिए हम इसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं। ये इन ओक्यूपा टेरिटरी कहलाती थी और वो इस पर कब्जा कर लेते थे। इस कब्जे के लिए कई बार मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए गए, जैसे कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इश्तिहार दिए जाते थे कि कोई भी शख्स यानी सफ़ेद आबादकार जिसकी उम्र 21 साल हो, वो 160 एकड़ ज़मीन पर सेटलमेंट बना सकता है जो कि इंडियन लैंड पर हो। जब ऐसे इश्तिहारात पर दरख्वास्त देने वाले बहुत से सफ़ेद आबादकार आ जाते तो उनके दरमियान एक दौड़ होती जो घोड़ों और बैलों पर की जाती थी। इस दौड़ को लैंड रेस ही कहा जाता था। ये कई दहाइयों तक अमेरिका में होती रही। जो शख्स खानदान इस दौड़ में जीत जाता वो ज़मीन के इस टुकड़े का मालिक बन जाता जिसके लिए दौड़ हो रही थी। बाकी लोग अगली दौड़ का इंतज़ार करते। इस दौर की तस्वीर, पेंटिंग्स और वीडियोस आज ऑनलाइन मौजूद हैं जो बताती हैं कि किस कामयाबी से अमेरिका ने नेटिव अमरीकियों की ज़मीनों को सफ़ेद आबादकारी से भर दिया। ज़मीन के असल मालिकों को डिह्यूमनाइज करके मार दिया गया, अब फिर कहीं गोशों में बसने पर मजबूर कर दिया गया। उनसे वादा किया गया कि अब ये ज़मीन का हिस्सा जिस पर उन्हें लाकर बसाया गया है उनसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन कुछ साल बाद इसे दोबारा प्लाट किया गया, खूबसूरत नक्शे बनाए गए और टुकड़ों में बेच दिया गया। जैसे कि आप इन नक्शों में देख सकते हैं, जिसे आज वो अमरीकी ख्वाब कहा जाता है, ये इस दौर का एक सिया पहलू है। नेटिव अमरीकियों की ज़मीनें बेच कर उनका इस्तेमाल करके सबसे अमीर हो गए और उन मकामी लोगों की खैर उन्हें कहीं भी धकेल दिया जा सकता था। ये बिल्कुल वही तर्ज है जो इसराइल अमरीका से सीख कर अब फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सेटलर्स 2 सदियों तक इंडियन लैंड फॉर सेल के बेशर्म इश्तिहारात छापते रहे जिन पर लिखा होता था कि बहुत आसान किस्तों में अपना घर बनाएं, अब किराए पर क्यों रहते हैं। बेहतरीन टाइटल, इंडियन लैंड पर घर बनाएं, 30 दिन में कब्जा हासिल करें। अब जाहिर है इस कब्जे का मतलब यही था कि 30 दिन में ताकतवर सेटलर्स किसी भी तरह वहां मौजूद नेटिव से उनकी ज़मीन छीन लेंगे और जिन्होंने किस्तें अदा की हैं उन्हें वहां लाकर बसाया जाएगा। फिर ऐसे बेज़मीर और बेदिल इश्तिहारात भी छापे जाते कि 1,15,00,000 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आएं और सेटलमेंट बनाएं। बेहतरीन दरख्त, ज़रखेज़ ज़मीन और बहुत सारा पानी है, और ये वो ज़मीन है जिसे नेटिव अमरीकियों ने अमरीका को आज़ादी के बदले खुद बेच दी है। लेकिन ये हकीकत में आज़ादी नहीं थी, ये गिन पॉइंट पर छेनी हुई ज़मीन थी। कैसे कहा जा सकता है कि अपनी ज़मीन पर किसी से आज़ादी? इसी तरह के अल्फाज आज इस्राएली सेटलर्स भी फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन जानिए ये सब इस्राएली आबादकार इसी किताब की पैरवी कर रहे हैं जो अमरीका ने अपनी रियासतें कायम करने के लिए 2 सदियों तक इस्तेमाल की। ये सब कुछ उन्होंने अमरीकियों की कामयाब नौआबादियाती रियासत से सीखा है। जब अमरीकी मुश्तरका अक़दार की बात करते हैं
तो दुनिया में नौआबादियाती तारीख जानने वाला शायद ही कोई हो जो इसका कोई और मतलब निकाले। फलस्तीन में इसराइली आबादकार ये समझते हैं कि जैसे अमेरिका ने मकामी बाशिंदों को शिकस्त देकर उनकी ज़मीनों पर आबादियां कायम की और वो आज तक कायम है, तो इसराइल इतनी छोटी ज़मीन पर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अमरीकी तारीख के इस खौफनाक पहलू में मकामी अमरीकियों को इंच इंच पीछे धकेला गया, यहाँ तक कि आज वो सिर्फ 2% बाकी रह गए हैं और सिर्फ 2% ज़मीन के मालिक हैं। 98% ज़मीन वो खो चुके हैं और वो सबसे ज्यादा पसमानदा और मजलूम तबके में शामिल हैं। आज उनकी मुकम्मल नस्ली सफाई कर दी गई है और इस नस्ली सफाई में वो तमाम अमरीकी सुदूर शामिल हैं जिनकी तस्वीरें आज बड़े फख्र से अमरीकी अपने ड्राइंग रूम्स और व्हाइट हाउस में लगाते हैं। इन सुदूर में एंड्रयू जैक्सन, मार्टिन वैन बीवरेन, विलियम हेनरी हैरिसन, अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनली और थियोडोर रोजवेल्ट शामिल हैं। कुछ बराह रास्त ओ ट्रेल ऑफ ट्रज यानी इंडियन रिमूवल एक्ट पर अमल करवाने में शामिल थे और कुछ ने इसके बाद बाकी मकामी बाशिंदों को निकालने में अहम किरदार अदा किया। उन सब ने नस्ली सफाई में मुकम्मल किरदार अदा किया। 2 सदियों तक मकामी अमरीकी जो अपनी बका की जंग लड़ते रहे, इनमें एक बहादुर जंगजू सरदार और लुक्वेटा कबीले के चीफ ओमापालूटा थे जिन्हें अमरीकी हुकूमत और अंग्रेज रेड कलर कहते थे, जिसका मतलब है सुर्ख बादल। उन्होंने 1840 से 1909 तक कई अमरीकी सुदूर के खिलाफ जंगें लड़े, कुछ में जीते लेकिन ज्यादातर में हार गए। आखिरकार मुसलसल शिकस्तों के बाद अपनी यकीनी हार देखते हुए उन्होंने आबादकारों के सामने हथियार डाल दिए और अमरीकियों से सिफारती तौर पर हुकूक की बात शुरू की। अमरीकी इस पर खुश हुए और उन्हें दहशतगर्द से एक सियासी हीरो का दर्जा दिया जाने लगा। उनसे वादे किए गए कि अगर तुम लोग मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दो तो तुम्हारे इलाके तुम्हारे पास रहने दिए जाएंगे। तुम अपने पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक रह सकते हो, अमरीकी शहरी भी रहोगे और हम बैरूनी हमलों से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ऐसे सैकड़ों मुआहदे हुए लेकिन किसी पर अमल ना हो सका। रेड कलोड अपने लोगों और अमरीकियों के दरमियान सिफारतकारी करते रहे और इसमें पस कर रह गए। रेड कलोड का एक मशहूर कौल तारीख में बहुत मकबूल हुआ, व्हाइट आबादकारों ने हमसे बहुत वादे किए सिवाय एक के। उन्होंने किसी वादे पर अमल नहीं किया और वो वादा जिस पर उन्होंने मुकम्मल अमल किया वो ये था कि उन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन ली। साथियों, रेड कलोड पर कई किताबें लिखी जा चुकी है। अगर आप एक कामयाब नौआबादियाती ताकत की तारीख जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि किस तरह मकामी लोग कमजोर होने की वजह से बेबस हो जाते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आप फिर इंतजार करें, ये हमारी उन 100 तारीख की किताबों में शामिल है जिन पर हमने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनानी है। दोस्तों, इस मुख्तसर अमरीकी तारीख को सामने रखें और एक बार फिर उन मजालिम पर गौर करें जो अमरीकी सरपरस्ती में पिछले 70 साल से फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के हक में हो रहे हैं। आपको साफ नजर आएगा कि अमरीका अपनी तारीख के आजमुदा फार्मूले के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के तौर पर जुल्म और जबर को इस्तेमाल कर रहा है। बिलाखिर इसे पूरा फलस्तीन और अरब का एक बड़ा हिस्सा अपनी आबादकारी और मुस्तकबिल के लिए चाहिए। इसराइल अमरीका के लिए जेम्स स्टोन है, इसीलिए अब देखते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से इन 10 माह के मजालिम में जो एक चीज यकीनी है वो ये है कि इसराइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसे इतने ज्यादा हथियार दिए जाएं कि वो जब और जहां चाहे हमला कर सके। वो इसको क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव एज कहता है। जंग बंदी की सबसे अहम शर्त यह है कि इसराइल को जंग के लिए हथियार देना बंद किया जाए, लेकिन अमरीका इस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहा बल्कि उल्टा इसके बरखिलाफ कर रहा है। याद रखें, अमरीका कभी भी मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा कोशिश नहीं करेगा। हर कोशिश सिर्फ इसराइली आबादकारों को कुछ रिलीफ देने के लिए होगी ताकि इंतखाबात में थोड़ा सा फायदा हासिल किया जा सके, जिसके बाद वो फिर पीछे हट जाएगा। वरना पूरी दुनिया और अवाम अमन के लिए सैकड़ों फार्मूले पेश कर चुके हैं जिन पर अमल नहीं हो रहा। हो सकता है आप इस वक्त दुनिया का नक्शा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हों। इस नक्शे में देखें कि दुनिया के अक्सर ममालिक फलस्तीन की आज़ादी को तस्लीम करने के हक में हैं और फलस्तीनी नुमाइंदे को अपने मुल्क में तस्लीम करते हैं, लेकिन आबादकार और उनके अमरीकी आका ऐसा नहीं करते। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने माजी से सीखा है कि मकामी बाशिंदों नक्यूज को दबाया जा सकता है और इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन अब एक छोटा सा मसला उनके सामने है और वो ये कि जब ये वाइट सिटलर्स मकामी अमरीकियों की नस्ली सफाई, अलिफासनक क्लींजिंग और उनकी नस्ल कशी जेनोसाइड
कर रहे थे तो वो सब कुछ लाइव नहीं हो रहा था। मगर आज फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने बराह रास्त हो रहा है। अब देखते हैं कि दुनिया का इज्तिमाई ज़मीर और इंसानी शऊर क्या वाकई एक कदम आगे बढ़ा है। क्या इंसानियत ने कुछ तरक्की की है या फिर इंसान बुलंदी के बावजूद अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है।